بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، اسموک نے خطرے کی گھنٹی بجائی تو انتظامیہ جاگ اٹھی۔ فیصل آباد سمیت 4 ڈویژنز میں ہائر سیکنڈری اسکول 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ نجی دفاتر میں حاضری 50%، سرکاری میٹنگ زوم پر کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ اپ ڈیٹ کرتے چلے، اسموک نے خطرے کی گھنٹی بجائی تو انتظامیہ جاگ اٹھی۔ فیصل آباد سمیت 4 ڈویژنز میں ہائر سیکنڈری اسکول 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ اسموک میں خطرناک حد تک اضافہ، پنجاب حکومت نے بڑھتے اسموک کے باعث اسکول بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصل آباد سمیت چاروں ڈویژن میں ہائی سیکنڈری تک تمام اسکول 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ اس دوران تمام اسکول آن لائن کلاسز کا اہتمام کریں گے۔ نجی دفاتر میں حاضری 50% کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ سرکاری میٹنگ صرف زوم پر ہی ہوں گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج 1100 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ ہوا۔ تمام محکموں کو ماحولیاتی آلودگی کے سدباب کے لیے فرض تفویض کر دیے گئے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں تعلیمی ادارے اسموک کے پیش نظر بند کر دیے گئے۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب نے تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق 12ویں جماعت اے لیولز تک نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز پر منتقل ہوں گے۔ فیصلے کا اطلاق لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب پر بھی ہوگا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں اسکولز بند رہیں گے۔ فیصلے کا اطلاق 7 نومبر سے 17 نومبر تک ہوگا۔ اسموک کی فیصل آباد ڈویژن پر چڑھائی، چنیوٹ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 244 پوائنٹ تک جا پہنچا۔ سنتی شہر میں فضائی آلودگی 230 پوائنٹس کو چھو گئی۔ شہری زہریلی آب و ہوا میں دم گھٹنے سے پریشانی کا شکار ہیں۔ اسموک نے فیصل آباد ڈویژن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چنیوٹ اور گرد و نواح میں اسموک کے بادل منڈلانے لگے۔ دن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 244 پوائنٹ تک جا پہنچا۔ صنعتی شہر میں فضائی آلودگی 230 پوائنٹ کو چھو گئی۔ ٹوبہ میں فضائی آلودگی کا راج برقرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 225 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ جھنگ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 224 تک رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان۔ طبی ماہرین نے اسموک کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ کہتے ہیں کہ شہری زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، گھر سے نکلتے وقت چشمے کا استعمال کریں، ناک اور منہ کو ماسک یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں، زیادہ سفر سے گریز کریں، سفر کے بعد آنکھوں کو پانی سے ضرور دھوئیں، گھر کی صفائی کے لیے جھاڑو کی بجائے گیلا کپڑا استعمال کریں، مٹی پر حکومت کی جانب سے ایس او پیز اور پابندیاں انتظامیہ ابھی بھی غیر سنجیدہ۔ ڈویژن بھر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا سبب بننے لگیں۔ پی ایچ اے حکام نے بھی گرین ویسٹ کو آگ لگانا معمول بنا لیا۔ ٹوبہ میں میونسپل کمیٹی کوڑے کو آگ لگانے لگے۔ جھنگ، چنیوٹ میں ماحولیاتی ٹیموں کی عدم دلچسپی کے باعث انڈسٹریل یونٹس اور فیکٹریاں زہریلا دھواں چھوڑنے لگیں۔ مہنگائی سے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے ستمبر کے لیے بجلی کے نرخ میں کمی کر دی۔ بجلی کی قیمت ₹1.28 فی یونٹ کمی کی منظوری اور اطلاق ستمبر کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ہوگا۔ مہنگائی سے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، نیپرا نے ستمبر کے لیے بجلی کے نرخ میں کمی کر دی۔ بجلی کی قیمت میں ₹1.28 فی یونٹ کمی کی منظوری اطلاق ستمبر کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ہوگا۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی سستی ہو گئی، لیکن کیپیسٹی چارجز اور سماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مہنگی کرنے کی تیاری۔ صارفین پر مزید $9.25 ارب کا اضافی بوجھ ڈالا جائے گا۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر آ گئی، سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ نیپرا نے صارفین پر 8 ارب 72 کروڑ روپے کا مزید بوجھ ڈالنے کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ درخواست رواں مالی سال کی پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائی گئی، جس کی سماعت 20 نومبر کو ہوگی۔ کیپیسٹی چارجز کی مد میں بھی 8 ارب 6 کروڑ روپے مانگ لیے گئے۔ ملک بھر کے صارفین سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1.74 روپے فی یونٹ ادا کر رہے ہیں۔ نیپرا کے مطابق بجلی اور مرمت کی مد میں 1 ارب 25 کروڑ روپے مانگے گئے۔ سسٹم چارجز اور مارکیٹ آپریشن فیس کی مد میں 1 ارب 65 کروڑ روپے کی درخواست بھجوائی گئی۔ گزشتہ مالی سال کی آخری سہمائی ایڈجسٹمنٹ وصولی رواں ماہ ختم ہو جائے گی۔ 341 کی گرام فروشوں کے ضمیر پر دستک، چکی کا آٹا 10 روپے فی کلو سستا۔ دوسری طرف سور میز کا آٹا، گیس کی مہنگی ہونے سے روٹی کی قیمت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ گندم سستی ہونے پر مدہوش چکی مالکان کو ہوش آ گیا۔ گندم کی قیمت 3250 روپے سے کم ہو کر 3000 روپے فی من ہوئی تھی، تاہم چکی مالکان نے آٹا سستا نہیں کیا تھا۔ سٹی 41 کی خبر، چکی مالکان نے 2 روز بعد آٹا 10 روپے فی کلو سستا کر دیا۔
नई कीमत 100 रुपए से कम होकर 90 रुपए फी किलो पर आ गई। आटा चक्की मालिक का कहना था कि गंदम की कीमत मजीद कम हुई तो आटा भी मजीद सस्ता करेंगे। चक्की मालिकान ने 100 रुपए की बजाय 90 रुपए आटा कर दिया है और मजीद गंदम अगर सस्ती हुई तो मजीद आटा सस्ता कर देंगे। दूसरी जानिब आटा और गैस महंगी होने के बाद तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत 20 रुपए करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं गैस 9 रुपए MMBTU महंगी हो चुकी है, अब 15 रुपए में रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। लोगों के अंदर अदम एतमाद है, एतमाद की फिजा नहीं बहाल, कामों के वो हालात नहीं है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम रोटी उस नर्क पे बेच सकें। हुकूमत खुदारा होश के नाखुन लें, इससे पहले कि हम लोग जो है अपनी चीजें बेच के इस वक्त हम गुजारा कर रहे हैं, और आपकी मेहरबानी है कि इस पे नजरसानी करें और रेट जो अपने रेट पे लेके आए। अगर गंदम की कीमत में कमी का सिलसिला जारी रहा तो आइंदा दिनों में आटा मजीद सस्ता होने की उम्मीद है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। सर्दी की आमद से कबल ही सुई गैस का बहरान बढ़ने लगा। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी शदीद मुतासिर है। लोग एहतजाज पर मजबूर, कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग अभी तक खत्म नहीं हुई, गैस की फराहमी मुतासिर होना शुरू हो गई है, हुकूमत होश के नाखुन ले। सर्दी आने से कबल ही सुई गैस जाने लगी। फैसलाबाद शेखपुरा रोड पर वाक़ वहीद गार्डन के मकीन 3 रोज से गैस सप्लाई की राह तक रहे हैं। शहरियों का कहना है खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नाश्ता बाजार से खरीदना पड़ता है। हम लोग कौन सा फ्री की गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल दे रहे हैं ना हर महीने। हमने जो बिल ये मीटर लगवाए हुए हैं ना, पैसे दे के लगवाए हुए हैं, फ्री के नहीं लगवाए हुए। 3 दिन से तो बिल्कुल गैस बंद है। इसके अलावा 3 माह से हम इतने परेशान है कि लो प्रेशर की वजह से जिसके ऊपर हम खाना नहीं पका सकते। शहरियों का मजीद कहना है कि महंगी लकड़ी खरीद कर खाना बना रहे हैं। दुकानदारों ने गैस सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा कर दिया। गैस हुक्काम को मुतअद्दिद शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। इतने साड़ी तो सुनता ही कोई नहीं, ना हुकूमत सुनती है ना कोई महकमे वाला सुनता। शहरियों ने मुतालबा किया कि सुई गैस हुक्काम मामले का नोटिस लेकर गैस की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकें। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि स्नूकर की दुनिया में पाकिस्तान को एक और एजाज। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने दोहा में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। तीसरी बार आलमी स्नूकर चैंपियनशिप बनने पर मोहम्मद आसिफ के भाई साजिद बशीर की दुकान पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। के क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने IBS वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में जादू जगाया, सबको खुशी का मौका दिखाया। ईरानी हरीफ अली घरगोजलुफ को फाइनल में 5-3 से हराया। मोहम्मद आसिफ की जीत पर भाई ने मिठाई तकसीम करके खूब जश्न मनाया। आसिफ के भाई साजिद बशीर कहते हैं भाई ने फैसलाबाद और पाकिस्तान का नाम एक मर्तबा फिर रोशन कर दिया। अल्लाह ने एक बार फिर हमें इज्जत दी है, पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी है, हमारी फैमिली को इज्जत दी है। और आसिफ बहुत मेहनती लड़का है जी, उसका अब लड़का तो नहीं रहा, लेजेंड हो गया है। वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जितना बड़ा एजाज की बात है, और अब खुशी का अंदाजा कोई नहीं है। महल्लेदारों ने भी आसिफ की जीत पर खुशी का इजहार किया। दोस्त राना तैयब बोले मोहम्मद आसिफ शुरू से ही मेहनती थे। स्नूकर में 3 बार जो हमारा भाई चैंपियन बना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। फिर हमारी गल्ला मंडी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमारी गल्ला मंडी का भाई बच्चा जो एक वर्ल्ड लेवल पे जाके 3 बार चैंपियन बना। तो मैं खुद भी आसिफ भाई को बचपन से जानता हूँ, हम एक ही जगह रहते थे, एक महल में हम खुद खेलते रहे हैं। तो बड़ा मेहनती बच्चा है, ये पूरी फैमिली स्पोर्ट लवर है। मोहम्मद आसिफ 3 मरतबा आलमी स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तानी बन गए। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41, फैसलाबाद। म्यूनसिपल कमेटी टोबा के मुलाजमीन और THU अस्पताल शोरकोट के सिक्योरिटी गार्ड्स कई माह की तनख्वाहों से महरूम। मुतासरीन ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। मुलाजमीन कहते हैं यूटिलिटी बिल्स की अदम अदायगी और राशन का हसूल दुश्वार बन गया, फाकों पर मजबूर हो गए हैं। टोबा टैक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी के 360 से जायद मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर परेशान। इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाहें न मिलने पर यूटिलिटी बिल्स की अदायगी और माहाना राशन का हसूल भी दुश्वार हो गया। म्यूनसिपल इंतजामिया के मुताबिक अकाउंट ऑफिस की जानिब से माहाना ग्रांट चेक जारी न होने से तनख्वाहें ताखीर का शिकार हुई। अकाउंट ऑफिस का कहना था कि आज तनख्वाह का बिल क्लियर हो जाएगा। बुरा हाल है, तो बिल आए आ काउंट ऑफिस वाले चैक नहीं दे रहे, ਉਹਦੀ ਵਣਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਬਾਵਟ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇ ਕਰੋ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੈੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਫੀਸਾਂ, राशन सारा कुछ लइए जी, मेहरबानी होगी जी इन्हां दी। शोरकोट में भी THQ अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स को कई माह से तनख्वाहें ना मिली। 19 मुतासरा सिक्योरिटी गार्ड सरापा एहतजाज काम छोड़ दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना था कि तनख्वाहें ना मिलने पर घरों में फाकों की नौबत आ गई। बच्चों की फीस से कहां से अदा करें, कंपनी तनख्वाहें नहीं दे रही। हुकूमत पंजाब मामले का नोटिस ले। कुछ गार्ड ऐसे हैं जिनको 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। अब कुछ गार्ड ऐसे हैं जिनको 3 महीने से नहीं मिली। फायरवाल कंपनी की तरफ से हम भर्ती हुए हैं और हमारे चूल्हे भी अब तो ठंडे हो गए हैं। बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, अब मेरे पास फीसां भी इतनी नहीं हैं कि हम उनको दे सकें। हम अपील करते हैं कि हमें तनख्वाहें दी जाएं, बड़ा मेहरबानी। MSTHQ अस्पताल शोरकोट का कहना था कि तनख्वाहों के लिए PMU को खत लिख दिया गया है। फैसलाबाद के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल, हुकूमत पार्किंग प्लाजा बनाने में नाकाम। ताजरों ने खुद प्लाजा बनाने की पेशकश कर दी। कहते हैं कि ज़िला इंतजामिया जगह फ्राहम करे तो पार्किंग प्लाजा खुद तामीर कर लेंगे। ताजरों ने 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल हल करने के लिए बड़ी पेशकश कर दी। बानो मार्केट के सदर मिर्जा शहबाज अहमद कहते हैं कि 8 बाजारों में 20% जगह ज़िलाई हुकूमत की है। हमें जगह फ्राहम की जाए तो पार्किंग के लिए ढांचा खुद तामीर करने की जिम्मेदारी लेते हैं। 20% गवर्नमेंट की जगह मौजूद है, उनको मोबिलाइज किया जाए, पार्किंग प्लाजे बनने चाहिए, ये मसाइल हल होगा। फिर ट्रैफिक का मसला हल होगा, फिर आप वार्डन को लगाएं, फिर लोग वायलेशन नहीं करेंगे। बानो मार्केट के सेक्रेटरी राना उमैर कहते हैं कि एक तरफ बिजली के भारी भरकम बिलों ने मसाइल पैदा किए तो दूसरी जानिब पार्किंग के फुकदान के बाद गाहक की दुकानों तक रसाई नहीं रही। बाद दफ़ा ये होता है कि बच्चों के साथ गुजरना बाजार के अंदर मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद अगर कोई गाड़ी में आता है, पार्किंग लगाने के लिए गाड़ी की पार्किंग नहीं होती, तो उसको यही पीछे झटका लगा होता है, कहीं वार्डन वाले मेरी गाड़ी ना उठा के ले जाए, कहीं चोरी होने का खतरा ना हो जाए। उनका एक फोकस नहीं वहाँ रहता, बिल्कुल नहीं रहता कि वो एक खुले माइंड के साथ वो शॉपिंग नहीं कर सकते। ताजरों का कहना है कि गाहक दुकान तक आएगा तो मसनूआत बिकेंगी। बेहंगम ट्रैफिक के बाइस गाहक को दुकान तक रसाई ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से दुकानदार सारा दिन गाहकों के मुंतजिर रहते हैं। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट के बाजारों में फायर हाइड्रेंट्स का मंसूबा इल्तवा का शिकार। दुकानों पर आग बुझाने के हालात भी यकीनी ना बनाया जा सके। आग लगने की सूरत में बड़े नुकसान का अंदेशा है। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में 2 साल बाद भी जेर ज़मीन वाटर टैंक और हाइड्रेंट्स पॉइंट्स न बन सके। अंदरून बाजार पार्किंग में जेर ज़मीन वाटर टैंक बनाया जाना था, जिससे फौरी तौर पर किसी भी जगह लगी आग को बुझाना आसान हो जाना था। हर दुकान पर आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी जरूरी करार दी गई थी। एक तो बाजार बहुत ज़्यादा तंग है, अगर कोई हादसाती तौर पे फौरी तौर पे अगर कोई रेस्क्यू 112 वाले पहुंचना चाहें तो वो नहीं पहुंच सकते, इतनी देर में नुकसान हो जाता है। तो हमारी ये अपील है कि जो हमारे यहाँ मंजूर हुआ था उस पर जल्द से जल्द काम करवाया जाए। शहरियों ने आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी को यकीनी बनाने और फौरी फायर हाइड्रेंट्स के मंसूबा शुरू करने का मुतालबा किया। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। ऐसा हाल रेलवे का, इससे कहीं अब तक रेलवे अस्पताल का अस्पताल है या भूत बंगला। स्टाफ पूरा, ना ही दवाई दस्तयाब। फैसलाबाद के रेलवे मुलाजिमीन कहते हैं कि 14 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में इलाज के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं। ज्यादातर चेकअप प्राइवेट कराना पड़ता है। फैसलाबाद में रेलवे अस्पताल हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार हो गया। रेलवे मुलाजमीन इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने लगे। कहते हैं शोबा बैरूनी मरीजा में अद्वियात नायाब हैं। 14 बेड पर मुश्तमिल रेलवे अस्पताल सिर्फ सुबह के औकात में इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है, ताहम शाम में सिर्फ टेक्नीशियन और रात में चौकीदार रेलवे अस्पताल का निजाम देख रहे हैं। हुकूमत की नली है, मिलना चाहिए 24 घंटे इमरजेंसी और होनी चाहिए। कोई मुलाजम एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती, ट्रेन के नीचे आ जाता, नहीं होते तो फिर बाहर में चले जाते हैं प्राइवेट में, लेकिन ये करना चाहिए। MS रेलवे अस्पताल डॉक्टर अरशद का कहना है कि OPD में अद्वियात की शॉर्टेज है। इमरजेंसी में मरीज को 2 घंटे के लिए दाखिल करके दीगर अस्पतालों में रेफर किया जाता है। तो रेलवे एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज, तो उनके लिए हमारे पास 14 बेड्स, काफ़ी ज़्यादा बेड हैं और उस लिहाज से हमारे पास ठीक है। शाम के टाइम हमारा एक डिस्पेंसर पहले टाइम बैठते हैं, सुबह के टाइम हमारे पास एक डिस्पेंसर सुबह के टाइम होता है, एक शाम के टाइम होता है, और रात के टाइम हमारे पास एक चौकीदार होता है। रेलवे अस्पताल में सहूलियात के फुकदान का बाइस अस्पताल के ज्यादातर कमरे बंद पड़े हैं, जबकि अस्पताल में खुले कमरों की भी कोई अफादियत नहीं है। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और आपको बताएं, खेलता पंजाब के तहत डिवीजन भर में मुकाबले जारी हैं।
फैसलाबाद में खेलता पंजाब के तहत हॉकी स्टेडियम में चौधरी कॉर्पोरेशन हॉकी क्लब और मुजाहिद हॉकी क्लब के दरमियान कांटे का मुकाबला। खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर पुरजोश दिखाई दिए। हॉकी मैचेस में चौधरी कॉर्पोरेशन ने मुजाहिद हॉकी क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।